خبر آپ کو دے کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کا کرپشن میں ملوث ہونے کا انکشاف 1,75,00,000 کی 2 گاڑیاں خرید کر غائب کر دی گئیں۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران 1,75,00,000 روپے کی 2 گاڑیاں لے اڑے۔ سرکاری خزانے سے غیر قانونی طور پر 2 گاڑیاں خریدی گئیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے گاڑیوں کی خریداری پر اعتراض کیا۔ اینٹی کرپشن نے 2023 میں FIR درج کی، جس میں DG MDA محمد سہیل، ڈائریکٹر فائنانس شاہد محسن، ڈائریکٹر عمیر گلزار کے خلاف مقدمہ درج ہوا، لیکن خریدی گئی گاڑیاں غائب ہو گئیں۔ سال 2024 میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا۔ جنوری 2025 میں بتایا گیا کہ معاملہ زیر تفتیش ہے۔ اب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ صدر اسمبلی میں پیش کی گئی۔ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھے گی۔ عوام کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن ساتھ ہی معمولی بوجھ بھی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں واضح کمی کر دی اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی اضافہ کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذ کر دیا گیا۔ تفصیلات بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ عوام کے لیے ریلیف اور بوجھ ایک ساتھ۔ پیٹرول سستا ہونے پر عوام خوش، مگر ڈیزل کی قیمت میں اضافے نے الجھن پیدا کر دی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کی نمایاں کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپے 48 پیسے مہنگا کر دیا گیا اور اب اس کی نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول سستا کرنا خوش آئند فیصلہ ہے، مگر مہنگائی کے اس دور میں قیمت مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیزل بھی سستا کرنا چاہیے انہیں، کیونکہ ڈیزل بھی مہنگا ہی ہے، اور پیٹرول تو اور سستا کرنا چاہیے، کیونکہ روز مرہ کا آنا جانا ہے سب کا۔ جی اس کو اور سستا کرنا چاہیے، عوام کو بہت تکلیف ہے۔ اور ہاں سستا ہونا چاہیے سر، آج کل مہنگائی بہت ہے، آپ کو پتہ ہے، غریب آدمی کیا کرے گا سر۔ وزارت خزانہ نے قیمت میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور ملک بھر میں نئی قیمتوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت شروع ہو چکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر اضافے پر گڈز کیریئرز ایسوسی ایشن کا رد عمل۔ سینئر نائب صدر سفیر شاہین نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم قیمتیں بڑھا کر عوام اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ رکن رانا طارق کے مطابق کرایوں اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا، جبکہ ترسیلی اخراجات بھی بڑھیں گے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ ملک میں پیٹرول سستا لیکن ڈیزل مہنگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے پر گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کا رد عمل۔ سینئر نائب صدر سفیر شاہین نے کہا ہے کہ حکومت مسلسل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر عوام اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، گورنمنٹ بالکل مذاق کر رہی ہے ہمارے ساتھ۔ پہلے 11 روپے ایک دفعہ بڑھایا، 10 روپے 36 پیسے ایک دفعہ بڑھایا، اور اب پھر انہوں نے 1.5 روپے بڑھا دیا۔ وہ کوئی یہ اتنی بڑی رقم لگتی نہیں ہے، لیکن یہ مسلسل تیسری دفعہ، یعنی کہ یہ تو ٹوٹلی تقریباً 40-42 روپے کا فرق آیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے رکن رانا طارق نے کہا کہ ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کی کرایوں میں اضافہ ہوگا، جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ جیسے ہی ڈیزل مہنگا ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی۔ اب حکومت کو اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ڈیزل بڑھتا ہے تو اس کا فوری طور پہ مہنگائی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ آج ڈیزل بڑھا ہے، آج ہی ہماری گاڑیاں 5 سے 10 ہزار روپے مہنگی لگیں گی۔ تو جب مہنگی گاڑیاں لگیں گی، ہمارے یہاں سے دیکھیں، چاول سے لے کر، دالوں سے لے کر، دوائیوں سے لے کر، سبزیوں سے لے کر، ہر چیز کا عمل دخل ڈیزل کے اوپر ہے۔ حکومت کو میرا نہیں خیال کہ ڈیزل کو بڑھا کر عوام کا خون چوسنا چاہیے۔ گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قیمتوں میں مزید اضافے سے گریز کیا جائے، تاکہ عوام اور کاروباری طبقے کو مزید مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ خبر آپ کو دے کہ امریکی معاہدے کا اثر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ 100 انڈیکس بلند ترین سطح 1,41,160 پر جا پہنچا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے ثمرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح پار کر گیا۔ اسٹاک ماہرین میں تاریخ رقم پہلی بار انڈیکس 1,41,000 کی سطح چھو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام بلند ترین سطح پر ہوا۔ 100 انڈیکس 1,644 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسٹاک ماہرین کے مطابق امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا اور وہ بھرپور انداز میں مارکیٹ میں متحرک نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، آج جو ہے مارکیٹ پھر جولائی کا مہینہ جیسا آپ نے کہا لکی رہا، اور اس کے ساتھ اگست کے آغاز میں ہی مارکیٹ نے جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ٹچ بھی کیا 1,41,000 اور اس کو مینٹین بھی کیا۔ اس کی جو 2 بنیادی وجہ ہے، جو ہے US ٹیرف میں جو پاکستان کا 19% جو لگا ہے، تو اس سے جو ہے پاکستان کو جو ایکسپورٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ سپورٹ حاصل ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں جہاں
ट्रेड डील के हवाले से पूरी दुनिया एक जो परेशानी में थी अमेरिका के साथ, वहाँ इस गवर्नमेंट ने अपने जो मौसर जामा पॉलिसीज जो बताई थी उसके बाद एक डील फाइनलाइज हुई है और 19% के ऊपर अमेरिका के साथ जो है ट्रेड डील हुई है। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे ने स्टॉक मार्केट में नई जान डाल दी। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे और कारोबारी सरगर्मियों में तेजी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने की कीमत में कमी हो गई, आलमी मार्केट में सोना $1 सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से $3,302 फी औंस पर आ गया। 1 तोला सोना ₹100 कम होकर $3,52,900 का हो गया। 10 ग्राम सोना ₹86 कमी से $3,02,555 पर आ गया। 1 तोला चांदी $3900 पर बरकरार है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। नजरसानी शुदा टैरिफ भारत पर आयद 25% से कम है। FPCCI ने फैसला पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। फयाज मक्कू बोले कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा मौका है। एक्सपोर्टर्स को अब आलमी मयार को मद्देनजर रखकर अपनी मसनूआत तैयार करना होंगी। मजीद इस रिपोर्ट में। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए सरप्राइज। अमेरिका ने पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। नजरसानी शुदा टैरिफ भारत पर आयद 25% से कम है। ये फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत शुदा एक नए वसी तर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किया गया। अमेरिका ने दर्जनों ममालिक से दरामद की जाने वाली अशिया पर 41% तक के नए टैरिफ का ऐलान किया। पाकिस्तान के लिए नया 19% टैरिफ खित्ते के कई दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, वियतनाम पर 20% टैरिफ आए। 2024 में पाकिस्तान को अमेरिका के साथ तकरीबन $3 अरब का तिजारती सरप्लस हासिल है, जिसकी बड़ी वजह टेक्सटाइल बरामदात थी। अमेरिका पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी है। FPCCI के सीनियर नायब सदर का अमेरिका टैरिफ पर रद्द अमल। फयाज मक्कू बोले, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ा मौका है। एक्सपोर्टर को अब आलमी मियार को मद्देनजर रखकर अपनी मसनूआत तैयार करनी होगी। फयाज मक्कू का कहना था कि एक्सपोर्ट में इजाफे से मईशत को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, खुसूसन अगर हुकूमत सपोर्ट पॉलिसीज बनाए। सीनियर नायब सदर फेडरेशन हाउस ने कहा कि हुकूमत को एक्सपोर्ट फ्रेंडली इकदाम करने की जरूरत है, जैसे कम बिजली के निर्ख, कम इंटरेस्ट रेट्स और आसान फाइनेंसिंग फराहम करनी चाहिए। अशरफ खान, सिटी 21। FBR के बेनामी जोन ने गाड़ियों की इंपोर्ट में अरबों रुपए की मुबैना बेनामी ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी शुरू कर दी। VBNGA स्कीम के गलत इस्तेमाल पर क्लियरिंग एजेंट्स को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में वजाहत तलब कर ली। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। गाड़ियों की दरामद में अरबों रुपए बेनामी ट्रांजैक्शन। FBI ने शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। FBI ने पुरानी गाड़ियों के इंपोर्टर्स और क्लियरिंग एजेंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एंटी बेनामी जोन ने 2018 से 2025 तक गाड़ियों की दरामद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अरबों रुपए के टैक्स चोरी और VBNG स्कीम के तहत गलत इस्तेमाल के इल्जामात पर क्लियरिंग एजेंट को 7 रोज में वजाहत देने की हिदायत कर दी और अदम ताउन की सूरत में फौजदारी कार्रवाई का अंदिया दे दिया। FBI ने एजेंट से मुकम्मल दरामदी रिकॉर्ड, मालिकान की तफसीलात और बैंक स्टेटमेंट भी तलब कर ली हैं। ऑल पाकिस्तान कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन ने तहकीकात में मुकम्मल ताउन का ऐलान किया है, जबकि जाली प्रोसीड, रियलाइजेशन सर्टिफिकेट और बैंकों की मिली भगत से फ्रॉड के इंकशाफ भी सामने आए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। तो कराची में यौम आज़ादी के जश्न का माय कराची नुमाइश के जरिए आगाज। रोशनियों के शहर में एक बार फिर सजा है रोशनियों का मेला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रिबन काट कर माय कराची नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि कराची के अमन, तरक्की और जश्न आज़ादी का इस्तारा बन चुकी है। रंगारंग और कौमी जोश से लबरेज नुमाइश का अहवाल बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। माई कराची नुमाइश का एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। वज़ीर आला सिंध ने 20वीं माई कराची नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि ये सिर्फ नुमाइश नहीं बल्कि सिंध की तरफ से जश्न आज़ादी का पहला पैगाम है। हम 14 अगस्त तक रोज़ाना जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला ने भारत की जानिब से मई में की गई साजिश का जिक्र किया और कहा कि 14 अगस्त को जश्न मोरकाए हक की याद में मनाया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची चेंबर को कि इस हवाले से, मुझे पता नहीं और सूबों में कोई इवेंट हुआ है कि नहीं, लेकिन सूबा सिंध का उस हवाले से जो 14 दिन की सेलिब्रेशन है, ये पहला इवेंट है। हमने पहला केक काटा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस साल ये 14 दिन
14 अगस्त तक शाइना शान तौर पे मनाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध ने FBR को भी आड़ो हाथों लिया। कहा कि FBR को बेतहाशा इख्तियार देने के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई। पानी की किल्लत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आला सिंध ने K4 मंसूबे की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया और विफाक से पानी का कोटा बढ़ाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। साबिक CEO टिनैब जुबैर मोतीवाला का कहना था कि इस साल की नुमाइश में 20 ममालिक शरीक हैं, 300 से ज़ायद स्टॉल्स और हज़ारों विजिटर्स की आमद। माई कराची अब एक बैनुल-अक़वामी सिग्नेचर इवेंट बन चुका है। हम आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं और पाक अफवाज के कारनामों को भी खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। Right now, what Sindh government is doing, I want to apprise you all that they have formed several committees to improve the business environment in Sindh, and that they are doing with participation of the ministers, Chief Minister himself, and the business community and the bureaucrats. The committees have been formed. Many committees, some for infrastructure, some for bringing more investment in the Sindh. The committees have been formed. I'm so grateful CM Sahab for forming those committees. माई कराची नुमाइश में कारोबार, सकाफत, हुब्बुल वतनी और तरक्की के रंग एक साथ झलक रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जश्न आज़ादी को शायान शान मनाने का अज़्म। सिंध असम्बली को सब्ज़ हिलारी परचम से सजा दिया गया। अरकान असम्बली का मिली जोश व जज्बा दीदनी। अरकान ने हरे रंग के जोड़े पहनकर तस्वीर बनवाई। रुकन असम्बली सायमा आगा कहती हैं कि ऑपरेशन बनियाल मरसूस के कामयाबी के बाद डबल जश्न मनाया जा रहा है और अभी तो 14 अगस्त तक बहुत सारे इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और जश्न आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है। आज सिंध असम्बली के इजलास में जो तमाम जो अरकान असम्बली वो ग्रीन सूट पहने हुए, खास तौर पर खवातीन ने, दोनों जमातों की MKM और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों के खातून ने, खवातीन जितनी भी हैं वो ग्रीन और वाइट पहन के आई हैं। हमने फोटो सेशन का सिलसिला भी असम्बली के ऐवान में देखा। मेरे साथ जुवेस ऑफ सायमा आगा मौजूद है। आज से ही आपने ग्रीन और वाइट शुरू कर दिया है, 14 अगस्त की क्या तैयारी है? 14 अगस्त की तैयारियां आपके सामने। असम्बली पूरी सजी हुई है और भरपूर तरीके से मार्का हक के नाम से हम ये 14 अगस्त की जो है पूरी 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक मनाएंगे और एक आज़ाद मुल्क के बानी हैं और दिखाएंगे कि हम आज़ाद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस 14 अगस्त पे जो जज्बा है वो इसलिए भी बुलंद है कि हमने इंडिया से जो है वो एक जंग जो है वो जीती और बनियान मरसूस जो है वो कामयाब हुआ और इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कितना दम है। और हम अपने और इस पे 14 अगस्त पे चीफ मिनिस्टर साहब ने और सबने जो है वो हर चीज़ में वो फ्री कर दी हुई है। हर चीज़ पार्क्स में जाएं, टिकट्स किसी चीज़ पे भी नहीं है। जितने भी प्रोग्राम्स होंगे ये वो सारे आप लोग एंजॉय करें और 14 अगस्त तक इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाएंगे क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और असम्बली को जो है वो पूरे तरीके से जो है वो सर सब्ज़ शादाब परचम से जो है वो सजाया गया है। असम्बली की हर तरफ हम देख सकते हैं ग्रीन और वाइट लाइटें जो है वो सजाई गई हैं, जबकि वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से जो है वो हर जगह की जो फीस, पार्कों की, तफरीगाहों की खत्म कर दी गई है इन 14 दिन तक। और बुनियान मरसूस के साथ साथ जो है वो इस बार हक का मुआरका के नाम से जो है वो 14 अगस्त या जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जाएगा, जो इसका सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। सिंध भर के सरकारी कॉलेजेस में आज से जश्न आज़ादी मार्का हक की सरगर्मियों का आगाज हो गया। शहर कायद में मरकजी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक M नॉर्थ नासिमाबाद में हुई। सेक्रेटरी कॉलेजेस ने कहा कि तकरीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। महकमा कॉलेज एजुकेशन के तहत यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन सिंध शहाब कमर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ब्लॉक M पहुंचे, जहां उन्होंने जज्बा खैर सगाली के तहत डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर नवेद रब सिद्दीकी और रीजनल डायरेक्टर के हमरा पौधा लगाया और फीता काट कर जश्न आज़ादी मार्का हक की सरगर्मियों का आगाज किया। कॉलेज की तालिबात ने कहा कि कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब ने दोस्तों के हमरा जश्न आज़ादी का मजा दोबाला कर दिया।
जश्न आज़ादी का आज हमारे कॉलेज में इवेंट है जो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे प्रोफेसर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है हमारे साथ और पूरा यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है और हमारे जो हैं चीफ साहब वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे और जो है अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। सेक्रेटरी कॉलेज सिंध प्रोफेसर शहाब कमर ने कहा कि आज़ादी का जज्बा एक बेहतरीन एहसास है। मुल्क की तरक्की में तलबा को अपना किरदार अदा करना होगा। जश्न आज़ादी के सिलसिले में 14 अगस्त तक कॉलेजेस में जश्न का समा रहेगा। हमारे पास पूरे सिंध में तकरीबन 375 कॉलेजेस हैं। तमाम कॉलेजेस डेली बेसिस पर प्रोग्राम अपने कॉलेज के लेवल पर करेंगे। उसके बाद इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स का एक प्रोग्राम है कि जो ज़िले के लेवल पर होगा। इसमें हम पोस्टर कंपटीशन करेंगे, पेंटिंग कंपटीशन है, डिबेट है, क्विज़ हैं, टैबलोज़ हैं, मिले नगमे हैं, इस तरह की कॉम्बिनेशन। और फिर जो कॉलेज लेवल के विनर्स होंगे उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर आएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो विनर्स हैं उनको हम। यौम आज़ादी मनाने वाले असातिज़ा ने मुल्क पाकिस्तान को नेमत करार दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास आज़ादी जैसी नेमत है और इस नेमत का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को बनाने में। शहर कायद में मरकजी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक एम नॉर्थ नाजिमाबाद में हुई, जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अगस्त का महीना शुरू होते ही शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन ने कहा कि इस साल जश्न आज़ादी शानदार अंदाज में मनाया जाएगा। इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट। जश्न आज़ादी का महीना आते ही जिन्हाज सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को सब्ज झंडों और रोशनियों से सजा दिया गया। इस मौका पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब भी मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन और डॉक्टर राहत नाज ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पूरे महीने आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक इस मरतबा हमने प्लान किया है पूरा सेलिब्रेट करने को। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है 14 अगस्त तो हम हमेशा सेलिब्रेट करते आए हैं, लेकिन इस मरतबा जिस तरह हमने भारतीय जारियत का हमारी पाक अफवाज ने दंदान शिकन जवाब दिया है, उनको उस कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, तो उन गाजियों और शहीदों को भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और जब जश्न आज़ादी का पूरा सेलिब्रेशन और प्लान करके 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक तो बहुत अच्छा लगता है और वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। सीनियर डॉक्टर्स ने भी हाथों में सब्ज हिलाली परचम उठाकर मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया। कहा, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और ये जज्बा जिंदगी भर कायम रहेगा। पाकिस्तान हमारा सब कुछ है। हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, था, है और रहेगा। और इस वक्त नीड ऑफ टाइम ये है कि हमें अपनी यकजहती शो करनी है। 14 अगस्त तो जश्न आज़ादी का दिन है। हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी उस दिन, और इस साल जो कुछ हुआ, जो इंडिया के साथ हम लोगों का हुआ, उसके बाद आई थिंक जो जज्बा है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने रूज पर है। मेडिकल के तुलबा व तालबात का कहना था कि वो अफवाज पाकिस्तान पर फख्र करते हैं। यूनिवर्सिटी और दीगर अस्पतालों में भी होने वाली आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी हो रही है हमें यहाँ पे, क्योंकि एक नई यूथ के लिए एक नया मौका है ये कि हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि आज हमने जो SMU ने हमारे जो 2 हफ्ते की आज़ादी फोर्टनाइट की सेलिब्रेशन है उसकी इफ्तिताह की कितने ज़ोरों शोर से की है, और ये 2 हफ्ते तक हर रोज़ कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहेगा जो हमें हमारी आज़ादी को और हमारा जो इवेंट था बुनियादुल महसूस ऑपरेशन उसको सेलिब्रेट करेगा। जिन्हाज सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज़ादी की तकरीबात पूरे महीने जारी रहेंगी। कैमरामैन काशिफ की हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21।